Okay. So, but at the end of the day, we need a productivity from ourselves as well as from our employees or our co-workers or whatever may be. And the best speaker I'd ever find in this subject is Bhavin. I know him since more than 1.5 decades. Previously, he used to take a talk on Excel, then Tele. Then I find him very interesting in information technology. Then he's becoming a management consultant. Now he has become a trainer. So his journey in this area, he started practicing, want to be CA, and over a period of time, he become very effective in his work area. Wherever he goes, he mesmerizes the people. And how, when you see Rohit, when you see Mohammad Shami, okay, yesterday uh, was a match between Sri Lanka and India. For these two guys, Rohit said that what was crucial in the match was a toss. At the end of the day, he lost the toss. He said, I will give a batting to other person. And he gave the reason also. He said in light, there is a more swing and more this thing. And if he has won the toss, he would have let go this thing. So captain is a person who makes people work. And today I want to learn from Bhavin how you can become a captain. Captain doesn't mean that uh, suppose one is boss is a captain, but every employee is a captain in his own way because there's a brand called company brand. Okay, then every employee, every department has a brand. Every employee has a brand, and brand doesn't mean because I know one person in my office. Everyone is a brand. I know this person can deliver this thing for me. So everyone at the end of the day, when Bhavin gives you a lecture, you will be able to become a brand on your own in office. Your company is a brand, your department is a brand, you are a brand, your boss is a brand. And boss is a brand because of every person working under him. For this, Bhavin will give something, a tools and technique for that. This is what I know as a whole. The second thing, if you look at Sami, you know, Sami was not taken in the team. When he was taken, he was not given a bowling at the initial stage of life. When 5 wicket down, 4 wicket down, he has been called upon. And then he performed. And by performing what he says, no, it's not a rocket science. So to become a productive, you need not be a rocket science. It's just be as simple as Bhavin has grown his career. I'd seen him pillar to pillar to work like that. Okay. This is with him. And I asked him, how can I introduce you? He said, don't introduce me. Okay, मैं बोला ठीक है, let me speak something which I know about him. Generally, people, when they become speaker, they would send me the list of the things which I have to speak. And Bhavin said nothing. With this short and sweet, I'll give mic to Bhavin. And anybody wants to ask a question, just type it. We will read it and answer it. Okay? Because this is not a one-way communication. This is a two-way communication. And whatever email you can type in a chat, I'll answer it. Anything which you want to become a brand ambassador of your company, of your department, just WhatsApp us. Okay. And Bhavin is not only taking the lectures in this type, but he's a management guru in many companies. They called him for the lecture, like big, like multinational company called him to take it lecture for 3 hours, 4 hours a day program is there. You can call on us to do the same. With this, I hand over to Bhavin. Last but not least, I am a Nitin Pathak. I am Isaka chapter founder president. Every week we take different classes.
I had a blog, and my main aim is to beat China. I'd been impressed with the China, and China has some limitation, but India has no limitation. And India is in not only in terms of English speaking public, intelligent public, non-linear thinking public, and I want India to beat every way in every facet of life. With this, I hand over the mic to Bhavik. Thank you very much. Thank you so much, Nitin sir, for always your inspiring words. I always feel blessed when I meet you, and I always learn something new from you. Though today I am speaker for this topic, but I will definitely say that I have learned a lot from you in terms of any kind of management, that how we can work better, or rather how we can work productively at our workplace. This is what I have observed from him and learned from him. I'm thankful to Nitin sir for his warm hospitality and giving me this opportunity to interact with the people on this wonderful topic called how we can increase our work productivity, or we can boost our work productivity. Let me tell you that when we talk about work productivity, it simply means that how much I can work in 24 hours. Some people says that we should work 10 hours, some people says we should work 8 hours, some people says we should work 9 hours, 6 hours, 14 hours. And recently our uh, Infosys chief Niran Murthy ji has given a statement that a youth should work 70 hours every week. And I can say that when I understand 70 hours, it means roughly 12 hours a day, considering 6 days a week. But प्रैक्टिकली क्या है, पॉसिबल है कि दिन में हम लोग 12 घंटे काम कर पाए? नेट टाइम की बात करें तो हम लोग नेट, क्योंकि एक इंसान होने के नाते हमको थकान भी लगती है, बोरियत से भी फील होती है, बोरिंग भी लगती है चीजों का, काम काम का वर्क प्रेशर होने की वजह से हेल्थ पे भी काफी बार इफेक्ट होता है। तो हम लोग काम को 12 आवर्स पर डे कैसे कर पाए, उसके लिए मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से मुझे जो सीखने मिला है वो चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेरा काम है लोगों को ट्रेनिंग देना। मैं एक्सेल के ऊपर, टैली के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। साथ के साथ मैं कंसल्टिंग का काम भी करता हूँ। मैं खुद का छोटा मोटा कंसल्टिंग फर्म चलाता हूँ, काफी सारी कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये सारा काम एक लेवल के बाद बहुत ज्यादा लगता है कि एक इंसान कैसे इतना सारा काम हैंडल कर सकता है। If you go to my LinkedIn profile, you will come to know my portfolio is very big. अब इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए जो भी मेरी लर्निंग है, जो भी मैं सीखा हूं, उस लर्निंग को आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने का ट्राई करूंगा। तो आइए आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग चलते हैं। मैं जब भी टॉपिक की बात करता हूं तो टॉपिक काफी सिंपल है, लोगों को पता है कि क्या टॉपिक है आज का। द टॉपिक इज टूल्स एंड टेक्निक्स टू बुक बूस्ट वर्क प्रोडक्टिविटी। हमारे काम में हम लोग किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिव बने और चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से समझने का प्रयास करें, ये हम लोग आज ट्राई करेंगे। मैं जब भी बात करता हूं कि वर्क प्रोडक्टिविटी की, तो वर्क प्रोडक्टिव का मतलब है कि हम लोग अपने वक्त को किस तरीके से मैक्सिमम बेस्ट एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग वर्क प्रोडक्टिविटी। बिकॉज एवरीवन इज हैविंग लिमिट। व्हेन वी टॉक अबाउट अ ह्यूमन, एक इंसान ऑन एन एवरेज 70 ईयर्स जीता है। हम बोलते हैं ना कि 100 साल जी गए तो काफी अच्छी बात है, मतलब हमारे जीवन का एक 100 साल का लिमिटेशन है।
दिन का लिमिटेशन है 24 आवर्स। जब मैं ये लिमिटेशन की बात करता हूं तो इस बात से अंदाजा है कि पूरी दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही हैं, बाकी चीजों का लिमिटेशन नहीं है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, 24 घंटे, उस घंटों में से कैसे हम लोग मैक्सिमम काम कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं जब भी बात करता हूं प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने की, तो सबसे पहला एलिमेंट जो मेरे दिमाग में आता है, द एलिमेंट इज बिलोंग्स टू टाइम, की टाइम को हम किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। वी हैव सीन सो मेनी seminars, webinars during the lockdown, online, offline, and so many other things we have seen. But when we talk about time management, primarily, time management is basically nothing but time management is about focus and priority management. The most overrated word is time management. क्या हम लोग टाइम को मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज लोग बताते हैं कि हमारी एज जो है वो 70 ईयर्स है, और लोग बोलते हैं कि 100 साल जी जाए तो अच्छी बात है, दिन में 24 घंटे हैं। तो प्रैक्टिकली वी कैन नॉट मैनेज द टाइम, but we can manage our focus and priorities so that we can do best utilization of available time, and we can increase our productivity day by day. For example, कोई बंदा ऑन एन एवरेज दिन में 8 घंटे काम करता है, कोई बंदा ऑन एन एवरेज दिन के 6 घंटे काम करता है, कोई बंदा ऑन एन एवरेज 10 घंटे काम करता है। उस एवरेज टाइम को कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो उसके पहले, सबसे पहले जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोकस मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट। वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क, काफी सारे काम होते हैं। काफी सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हम खुद कर सकते हैं, काफी सारे काम ऐसे होते हैं कि जो कोई हमारे बिहाफ पे करे तो हो सकता है। लेकिन कौन सा काम हम करें, कौन सा काम हमारी टीम वाला कोई बंदा करे, या फिर कौन सा काम ऐसा कोई इंसान करे कि जिसके जरिए हम लोग अपना टाइम बचा सके और हम लोग बेहतरीन चीजों के ऊपर ध्यान दे सके। तो उसके लिए फोकस एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट इज नेसेसरी। लेकिन इसके पहले ये बात हमको समझना जरूरी है, आज हम लोग प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके टूल्स जानेंगे एंड टेक्निक्स जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको टाइम के 4 ऐसे कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जो शायद आपने कहीं सुने हैं पहले, कहीं आपने देखा है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को आज देखने का नजरिया आपको एक अलग होगा। बाकी आप जानते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है, बट इसको देखने का जो एक तरीका है वो आज हम लोग थोड़ा अलग एंगल से देखने वाले हैं। तो टाइम के रिगार्डिंग 4 कॉन्सेप्ट है। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। एज डिस्कस्ड, एवरी ह्यूमन इज हैविंग 24 आवर्स ओनली। मुकेश अंबानी है या फिर कोई आम इंसान की जो किसी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता है, इन दोनों के पास 24 घंटे ही अवेलेबल है। इस लिमिटेड रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे करें, ताकि हम लोग चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पाए, ताकि हम लोग चीजों को बेहतरीन वे में कम से कम टाइम में कर पाए, ये हमारे लिए प्रायोरिटी बन चुका है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि टाइम जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर चीज के जैसा नहीं है कि आज आपने पैसे कमा लिए, कल उड़ा दिए, परसों फिर से कमा लिए, दिस इज ओके। लेकिन टाइम का ऐसा नहीं है। आज आपके पास टाइम है, आज का टाइम कल वापस नहीं आएगा, सब लोग बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ लिमिटेड रिसोर्स। एवरी पर्सन कम्स विद द एक्सपायरी टाइम, कि वो जाएगा, कब जाएगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, बट टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, टाइम इज अ डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनर्जी। मैं आपको सुबह 10 बजे बोलूं कि आपको 2 घंटे के लिए जीएसटी का लेक्चर अटेंड करना है, तो आप कर सकते हैं।
कर सकते हैं, कोई बात है नहीं। कोई भी अच्छे स्पीकर का वीडियो देख लो, 2 घंटे आप कर सकते हैं। लेकिन यही चीज मैं आपको रात को 10 बजे बोलूं तो, कि आपको 2 घंटे का जीएसटी का लेक्चर अटेंड करना है, क्या आप कर सकते हैं? प्रोबेबली नो, शायद नो, शायद आप नहीं कर सकते हैं। तो उसका रीजन ये है कि रात से 10 से 12 लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन आपने जो काम किया है उसकी वजह से जो थकान है, इसीलिए अब नया कुछ ग्रैब करने की क्षमता नहीं है, एनर्जी नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बट बेसिकली व्हेन पीपल से कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसका एक पहलू ये भी है कि उनके पास ये काम करने की एनर्जी नहीं बची है। तो इसमें से हम क्या सीखेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 1 है टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स। उसके ऊपर से लर्निंग ये है कि हम लोग जितना भी अवेलेबल टाइम है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। कैसे करना है दैट वी विल डिस्कस एज वेल। सेकंड, टाइम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनर्जी। गलत गलत चीजों के ऊपर यदि हमने अपनी एनर्जी डाल दी है, तो शायद ये पॉसिबल है कि जब सही काम करने का वक्त आएगा तब हम उस चीज को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। सो टाइम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताऊं कि संडे का दिन है, आई कुड हैव रेस्टेड बेटर, बट मैंने रेस्ट नहीं किया, रादर आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम अहमदाबाद टू गांधीनगर। नाउ दिस इज, एंड बाय वॉकिंग, लेट मी मेंशन, बाय वॉक आई हैव गॉन फ्रॉम अहमदाबाद टू गांधीनगर। नाउ व्हेन आई एम कमिंग बैक, मैं घर पर बैठा हूँ, मेरी वाइफ ने बोला कि भाभी ने एक काम करो, अमूल गोल्ड लेके आओ, मिल्क खत्म हो गया है। मैं बोलूंगा मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि जो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव चीज था, मैं बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट करके आया हूँ। अब सही जगह पे जब एनर्जी चाहिए तब है नहीं। सो टाइम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ एनर्जी। थर्ड, मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ टाइम। पीपल नेवर अंडरस्टैंड दिस मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ टाइम। मैं आज कहीं पर किसी से मिलने के लिए गया, शाम को 4 बजे गया, और मैं वहां पे वैसे 4 से 5 ही बैठना था, लेकिन 5:30 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। तो जहां पे 1 घंटा देना था वहां पे मैंने 3 घंटा दिया, क्योंकि मुझे मेरे टाइम की अहमियत मालूम नहीं। नाउ हाउ वी कैन डू मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ टाइम इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरी सैलरी आज 25,000 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम वर्किंग फॉर 25 डेज अ मंथ। 25 दिन मैं काम करता हूँ, 25,000 रुपए मेरी सैलरी है। एक दिन का 1,000 रुपए सैलरी हुआ। एंड फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग फॉर ऑन एन एवरेज 8 hours a day, तो 1,000 डिवाइड बाय 8 hours, रफली इट्स कम टू 125 रुपीज पर आवर। अब संडे के दिन जिसका मुझे सैलरी नहीं मिलता है, उसके लिए कोई भी बंदा मेरे को बोलेगा कि क्या आप लोग मेरे साथ 3 घंटे कुछ काम पे आ सकते हो? इफ आई एम गेटिंग 125 into 3, देन आई शुड गो, एल्स आई शुड नॉट गो, क्योंकि मेरे टाइम का मॉनेटरी वैल्यूएशन मुझे मालूम है। मैंने 25,000 की बात की, यही यदि मेरा सैलरी 2.5 लाख होता तो आई कुड हैव गॉट माई वैल्यूएशन 125 पर। आपके टाइम की मॉनेटरी वैल्यूएशन निकालो, और बाद में इस वैल्यू को ऑलवेज बढ़ाने का ट्राई करो। यू कैन इंक्रीज योर मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ योर टाइम पर आवर। यू कैन नेवर इंक्रीज द टाइम, बिकॉज टाइम इज अ कांस्टेंट फैक्टर। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर रेवेन्यू, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द वैल्यूएशन ऑफ योर टाइम। वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे। एंड फोर्थ थिंग इज वेरी सिंपल, टाइम कैन बी इन्वेस्टेड टू जनरेट अ रेवेन्यू। आई कम अक्रॉस मेनी पीपल, मुझे जीवन में काफी लोग मिले हैं वेकेशन में, या फिर मैं बात करूं कि आई एम बिलोंग्स टू टैक्सेशन एंड फाइनेंस इंडस्ट्री, पीपल कम्स टू अस मेनी टाइम कि मेरे पास 25,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूं? शुड आई डू एसएपी, एफडी करूं, आरडी करूं, गोल्ड में डाले कि कहाँ पे डाले? बट एक भी बंदा आज तक, मतलब लिमिटेड लोग मेरे पास आए जिन्होंने बोला कि अभी मेरे पास 1.5 महीने का टाइम है, आप बताइए मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं ताकि फ्यूचर में मेरे को बेटर रिटर्न दे। लोगों को मालूम है कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, हम लोग इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट पीपल डोंट नो इफ दे आर हैविंग 1 hour अ डे एक्स्ट्रा, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करे ताकि वो फ्यूचर में जाके कोई ना कोई रिटर्न जनरेट करे। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2013-14 के बाद तुरंत ही एक्सेल सीखना चालू किया था। मैं एक्सेल को डेली आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, एवरी डे आई वाज गिविंग ऑन टिल टुडे।
नियरली 10 साल होने आया है, लेकिन 10 दिन का भी ब्रेक नहीं होगा। अब मैंने कोई पैसा तो इन्वेस्ट किया नहीं, बट मैंने एवरीडे अपना आधा घंटा 1 घंटा उस एक्सेल में इन्वेस्ट किया, और आज वही जो एक बंच बना वो टाइम मेरे को काफी बड़ा रिटर्न दे रहा है। तो ये चीज समझना पड़ेगा, जब भी हम लोग वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात करते हैं, जब हमारा कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं, तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि समझो टाइम लिमिटेड रिसोर्स है। ये ऐसा नहीं है कि आपने गेहूं की तरह बोया और वो बाद में रिटर्न आता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके लिए बहुत समझने वाली बात है कि टाइम एक बार गया तो वापस नहीं आता, एंड इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड अगेन, directly associated with the energy, so you should not waste your time at some other place or unnecessary things की जहां पे कोई आपको valuation नहीं मिलता है। in Try to increase monetary valuation of your time, and fourth is you can invest your time to generate a revenue, but revenue जो होगा वो future perspective से होगा। right now you should invest your टाइम। सो ये 4 चीजें समझना जरूरी है, तभी हम लोग फोकस एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट कर पाएंगे। फोकस के लिए मैंने आपको ये 4 पॉइंट दे दिए। नाउ प्रायोरिटी मैनेजमेंट की हम लोग यदि बात करें तो व्हाट इज प्रायोरिटी मैनेजमेंट। आज के सेशन में हम लोग ये भी चीजें बातें करने वाले हैं। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें, चीजों पे फोकस्ड कैसे रहे, कहाँ पे एफर्ट करें, कहाँ पे एफर्ट ना करें, उसके लिए टूल कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं जब प्रायोरिटी मैनेजमेंट की बात करता हूं तो लोगों के पास ढेर सारे काम होते हैं। इसके ऊपर मुझे एक सिंपल स्टोरी याद आती है कि यूएस में एक प्रेसिडेंट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत ही हार्डवर्किंग यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के इतिहास में, लेकिन वो एक ऐसे प्रेसिडेंट रह चुके हैं कि जिनको मैक्सिमम लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि आप तो ये काम नहीं करते, आप तो वो काम नहीं करते। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन एट द एंड ऑफ द डे जब अपने घर पे बैठे सोच रहे हैं कि आई एम वर्किंग 14 आवर्स अ डे, आई एम 15 आवर्स अ डे, आई एम वर्किंग 16 आवर्स अ डे, दिन के 18-20 घंटे काम करने के बाद भी पीपल आर कंप्लेनिंग। क्यों? तो बाद में उन्होंने बैठ के एक लिस्ट बनाया कि मैं कितने काम करता हूं फिर भी लोग मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। फिर उन्होंने लिस्ट बनाया और उन्होंने देखा कि वो ऐसे काम ज्यादातर करते थे कि जो ना करो तो भी चले और करो तो भी चले, और ऐसे काम छूट जाते थे कि जिनको करना ही पड़ेगा, ताकि उनको ज्यादातर लोग अप्रिशिएट करने के बदले उनको डिप्रिशिएट यानी कि उनकी निंदा करते थे। बाद में उन्होंने क्या किया कि कल मुझे जो भी काम करना है उसके ऊपर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि ऐसे कितने काम हैं जो मैं करूं तो चले या कोई और बंदा करे तो चले, तो क्या वो अपना टाइम बचा सकते हैं वर्क अलोकेट करके, वर्क किसी को देके। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे कितने काम हैं कि जो करूं तो भी चले, ना करूं तो भी चले। थर्ड, ऐसे कौन से काम है जो करने ही पड़े। मतलब सिंपल उन्होंने एबीसी एनालिसिस किया कि पहले ये काम करना है, बाद में टाइम बचे तो ये करना है, और बाद में टाइम बचे तो ये करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हमारे जीवन में भी ऐसे काफी सारे मौके आते हैं कि जहां पे हम लोगों को काफी सारे काम करने पड़ते हैं, काफी सारे टास्क होते हैं, कौन सा काम करे कौन सा काम ना करे, ये बहुत ही दिक्कत वाला काम होता है। तो उसके लिए प्रायोरिटी मैनेजमेंट के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं। द कॉन्सेप्ट इज कि इधर आपका काम अर्जेंट हो सकता है या आपका काम इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम बोलते हैं ना कि ये तो अर्जेंट काम है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो आपके लेवल में भी आपका काम अर्जेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस कैन बी पॉसिबल, करेक्ट। नाउ प्रायोरिटी मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ काम छोड़ने पड़ेंगे। उसका एक हम लोग मैट्रिक समझने का ट्राई करते हैं यूजिंग दिस अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। कोई भी यदि आपके पास काम है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा काम है कि जो काम अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में कहीं पे पानी का लीकेज है, अब उसको क्या रिपेयरिंग अर्जेंटली करना पड़ेगा ना, वरना आसपास वाले वो चिल्लाएंगे कि पानी खत्म कर दिया इन लोगों ने, ये वो। ये अर्जेंट काम है,
लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का डेफिनेशन ये है कि क्या आप खुद करे उतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बंदा करेगा तो चलेगा? चलेगा ना। अभी पानी का आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, पाइप कटिंग करना है या फिर कोई नया रिपेयरिंग करना है, आप करो कि कोई और भी करे तो भी चलेगा। तो मतलब यहाँ पे आपका खुद का 100% इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। तो ये एक ऐसा काम हो गया कि जिस काम में अर्जेंट है, मतलब तुरंत करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद करें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे काम को डेलीगेट करो, प्लम्बर को बुला लो, किसी को बुला के उसको बोलो तुम करो। आप खुद इन्वॉल्व होके अपना 1.5 घंटा 2 घंटा वेस्ट मत करो। नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसा काम जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। कौन सा? मीटिंग करना आपको आपकी टीम के साथ। अब 10 लोगों की टीम को लीड करते हैं। एक तरफ आपका जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है 11 तारीख, और दूसरी तरफ आपको मीटिंग करना है। अब आपकी टीम ने बोला कि सर दो में से एक होगा, आपसे मीटिंग करें या फिर हम लोग जीएसटीआर 1 फाइल करें। तो इस केस में काम जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऐसे केस में आप काम को शेड्यूल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है ना, मीटिंग अभी थोड़ी ना करना है, चलेगा कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, दैट इज ओके। तो इस केस में आप उस काम को शेड्यूल कर सकते हैं कि कल हम इस काम को करेंगे। थर्ड, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो फिर ऐसा काम करके फायदा क्या? फॉर एग्जाम्पल, घंटों भर बैठ के टीवी देखना है, मोबाइल में रील घुमाना, क्या वो अर्जेंट है? जी नहीं। क्या वो इंपॉर्टेंट है? उतना भी नहीं है। तो इस केस में ऐसे काम को ड्रॉप कीजिए। मैं आपको प्रायोरिटी मैनेजमेंट बता रहा हूं कि कौन सा काम करे कौन सा काम छोड़े। एंड लास्ट एंड फाइनल वन, काम ऐसा है कि जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि आपके कंप्यूटर का डेटा लॉस हो गया है, डेटा रिकवर करवाना है, क्या ये काम इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली। इस काम ये काम नहीं होगा तो क्या हम लोग धंधा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अर्जेंट है, तुरंत करना पड़ेगा, जितना डिले होगा उतना हम लोग चीजों को लेटर ऑन कर पाएंगे। तो ऐसे केस में इस काम को डू इट नाउ। मोस्ट ऑफ प्रायोरिटी काम है आपके लिए। इस मैट्रिक्स को अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, आइजनहोवर मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जो आपको प्रायोरिटी मैनेजमेंट में मदद करता है, जो आपके लिए ये डिसीजन लेता है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम किसी और से करवाना चाहिए, कौन सा काम छोड़ देना चाहिए और कौन सा काम शेड्यूल करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ हुआ था वो हमारे साथ ना हो, इसीलिए वी शुड ऑलवेज कीप ऑन डूइंग दिस थिंग कि भाई ये चीज हम करेंगे, ये करवाएंगे, ये छोड़ेंगे, ये शेड्यूल करेंगे। करेक्ट। लेकिन काफी बार क्या होता है कि कोई भी काम फिर आता है तो मैं इसको इसी नजरिए से देखता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा आया आईटीआर फाइल करवाने के लिए कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। मैंने पूछा क्या आईटीआर फाइल करना इंपॉर्टेंट है? बोले इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट है। बोले अर्जेंट नहीं, अभी तो टाइम है, शेड्यूल करो उसको। शेड्यूल, ठीक है चलो हो गया। मुझे याद आया कि मैंने अपने मम्मी पापा से बात नहीं की है, 1 हफ्ता हो गया। तो मैंने सोचा क्या अर्जेंट है? नहीं अर्जेंट तो नहीं है। क्यों? कभी भी फोन कर सकते हैं मम्मी पापा को, तो इम्पोर्टेंट है। एज सच इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्योंकि हमको कुछ मिल नहीं रहा उस चीज से, कॉमर्शियली कोई फायदा नहीं है। लेकिन गलत है ना, बात तो करना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूँ अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो शेड्यूल करो। कब तक शेड्यूल करूंगा? मान लो पेरेंट्स से बात करना इंपॉर्टेंट है, आज याद आया शेड्यूल करो, कल याद आया शेड्यूल करो। नो। यदि मैं इतना रोबोट की तरह फील कर रहा हूं कि मैं ये 4 बक्से के बारे में ही सोच रहा हूं, तो मुझे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। टू टेक अ बेटर डिसीजन वी शुड ऑलवेज कंसीडर द टाइम इन्वॉल्व इन दैट। यदि टाइम इन्वॉल्व छोटा है, मुझे लगता है कि इसमें 5 मिनट लगेगा, लेट्स बात कर लेता हूं उससे, तो मैंने उससे बात कर लिया। इस केस में we can do it now as well, and looking to the time involved we can take the decision. For example, LinkedIn के ऊपर नेटवर्किंग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्या वो अर्जेंट है? अब भी तुरंत करना ऐसा थोड़ी ना है। इंपॉर्टेंट है बोले शेड्यूल करो। कब तक शेड्यूल करेंगे? है ना। तो इस केस में we can consider the factor of time involved so that we can take decision based on that as well कि कितना टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। So this is urgent important matrix which can help you to take decision कि कौन से काम करें कौन से काम छोड़ दिए जाए। करेक्ट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट
कि हमारे कितने टाइप के टाइम हो सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक काम होता है कि जो कैटेगरी में फॉल करता है रिक्रिएशन एंड मेंटेनेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं अपना हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा हूं, अपने बॉडी को मेंटेन कर रहा हूं। ओके, ग्रेट। डीप वर्क मतलब ऑफिस में बैठ के 4 घंटा काम किया जिससे काम हुआ, पैसा मिला, सब कुछ ग्रेट। इन्वेस्टमेंट, अब देखिए ना मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं 1 घंटा बैठ के एक्सेल सीख रहा हूँ, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। फैमिली एंड सोशल, ओके, किसी की शादी में गया हूं, ना वहां पे एक्सरसाइज है, ना काम है, ना इन्वेस्टमेंट है, बट आई एम गिविंग टाइम टू फैमिली एंड सोशल। ओके, और एक लॉस्ट टाइम होता है 2 घंटे इंस्टाग्राम पे बिता दिए, ना मेरे हेल्थ मेंटेन हुआ, ना कोई डीप वर्क हुआ, ना इन्वेस्टमेंट हुआ, ना कोई फैमिली एंड सोशल काम हुआ। तो आज हमें क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट था प्रायोरिटी को मैनेज करो। सेकंड कॉन्सेप्ट इज आप आपके टाइम को ट्रैक करो, मेजर करो कि इन 5 एरिया में से आपका कौन से एरिया में ज्यादा टाइम जाता है। हमारे लिए खुद को मेंटेन करना जरूरी है, करेंगे, डीप वर्क करेंगे तभी पैसा कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए है, फैमिली एंड सोशल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट हमको ये ट्राई करना है कि हमारे लिए मिनिमम जो टाइम हो वो टाइम लॉस्ट वाले कॉलम में होना चाहिए, मिनिमम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग अपना एक्टिविटी लॉग मेंटेन करेंगे। काफी बार ये लगता है कि व्हाट इज एक्टिविटी लॉग, फॉर एग्जांपल कि आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो ये शेड्यूल हफ्ते पहले हो चुका था। इसके पहले मैं 4 कॉर्पोरेट विजिट खत्म करके आया हूँ यहाँ पे। आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, पूरा लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, टाइम शीट इज देयर। तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम जा कहाँ पे रहा है। पैसों के लिए तो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं कि कितना हमारे पास पैसा आया, उसमें से कितना खर्चा हुआ, वी हैव ऑल द फिनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन व्हाट अबाउट योर टाइम, भगवान डेली आपके अकाउंट में 24 घंटे क्रेडिट करते हैं, उसमें से आपने कितना बैलेंस शीट में ले जाके आपने इन्वेस्टमेंट किया और कितना आपके पीएनएल में केवल और केवल लॉस्ट टाइम का खर्चा बुक हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को मालूम ही नहीं होता है। आई मीट पीपल, मैं स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, रिसेंटली आई हैव विजिटेड सो मेनी कॉलेजेस, आई मीट न्यू स्टूडेंट, आई आस्क देम कि आपका 24 में से मैक्सिमम टाइम कहाँ पे जाता है 24 घंटे में से। दे डोंट नो, उनको याद ही नहीं है। मैं बोला पैदा कब हुए, कल हुए? बोले नहीं नहीं सर, वी आर एट एज ऑफ 22 to 23। तुम 23 साल के हो चुके हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपका दिन का 3 घंटा 4 घंटा कहाँ पे जाता है। तो आपने आपके टाइम को कभी भी मेजर नहीं किया है, बहुत जरूरी है। और ये खुद के टाइम को मेजर करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत, कि पता चले 24 घंटे में से कितना टाइम लॉस्ट टाइम में जाता है। आई कैन टेल यू गारंटेड मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब 80% से भी ज्यादा लोगों का टाइम जो है ना वो इस लॉस्ट टाइम में ही जाता होगा। मैक्सिमम मतलब मोर देन 60% टाइम लॉस्ट टाइम में जाता होगा। those youth who are complaining about the time, if you ask me, मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो इन दोनों में जाता है, डीप वर्क एंड इन्वेस्टमेंट। आई कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो टाइम है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे ज्यादा जा रहा है, कहाँ पे कम जा रहा है। आई शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द एक्टिविटी लॉग। मैं क्या करता हूँ, डेली डायरी लिखो, खुद आज क्या किया, कितने बजे क्या सीखा लिखो, टाइम शीट मेंटेन करो। टाइम शीट इज अ कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट कि प्रैक्टिकली आज मैं किसी की वहां पे जाता हूँ काम करने के लिए, तो मेंटेन टाइम शीट के मैं 4:10 को पहुंचा, 4:15 को काम चालू किया, 6:45 तक मैंने काम किया। टाइम शीट मेंटेन करो यदि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो। अब बैंक में जाते हो ना, आपने बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाए, एक एक रुपए का हिसाब होता है कि 700 रुपए आपने यहाँ पे सैंडविच वाले के वहां पे पे किए, 200 रुपए का आपने पेट्रोल पुरवाया, 600 रुपए का आपने एसआईपी किया, 4,500 रुपए का आपने रेंट दिया, बाकी बचा वो बैलेंस है। तो जैसे आपके पास उस पैसों का हिसाब होता है 10,000 रुपए का, द मोस्ट प्रीसियस थिंग
आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, द टाइम विच इज गिवन बाय द गॉड, उस टाइम का आपने क्या इस्तेमाल किया, उसका एक्टिविटी लॉग, डेली डायरी या टाइम शीट आपके पास होना चाहिए। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज प्रायोरिटी मैनेजमेंट करो, तब जाके आपका प्रोडक्टिविटी बनेगा। वरना आप क्या करोगे कि अभी दीपावली का माहौल है लेकिन आप प्रिपरेशन करोगे काइट के लिए, है ना, काइट फ्लाइंग डे 14 जनवरी के लिए, तो फिर ना ही आपका 14 जनवरी बेटर होगा, ना ही आपका दीपावली, क्योंकि आपने प्रायोरिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जीवन में। एंड सेकंड, टाइम को आपको पता तो होना चाहिए ना। दोज हु आर कीप ऑन शाउटिंग वी डोंट हैव अ टाइम, वी डोंट हैव अ टाइम, उनको पूछो तो सही कि आपका 24 घंटा जाता कहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पे रिक्रिएशन एंड मेंटेनेंस में आप 10 घंटे पकड़ के चलो, 8 घंटे की नींद, 2 घंटे रेडी वगैरह जो भी होना है, 10 घंटे, बाकी बचे 14 आवर्स। 14 आवर्स का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर है। बट फॉर दैट सेकेंड कॉन्सेप्ट इज टाइम ट्रैकिंग एंड मेजरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ड्यू डेट कैलेंडर। मैं सिस्टम बेस्ड ड्यू डेट कैलेंडर की इसीलिए बात करता हूँ। मैं लोगों को पूछता हूँ कि भगवान ने ये दिमाग क्यों दिया हमें। आई आस्क द पीपल, बोले याद रखने के लिए दिया। इंसान हो, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको स्टोरेज यूनिट क्यों बनाने का। मैं बोलूं कि आपके पास 5,000 जूते पड़े हैं, आपके 5,000 जूते के पैर पड़े हुए हैं, विल यू स्टोर इट इन योर होम और विल यू कीप इट आउटसाइड। कितने भी हो बाहर ही रखेंगे। या फिर आप फैक्ट्री, आपके पास फैक्ट्री है, 5,000 जूते आपने बनाए, उसी फैक्ट्री में रखोगे कि गोडाउन में ले जाओगे। सर गोडाउन में लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री स्टोरेज यूनिट नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट है। वैसे ही दिमाग जो है वो स्टोरेज यूनिट नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट है। हम ज्यादातर डेट याद रखते हैं कि 22 तारीख को इंश्योरेंस है, 11 तारीख को GSTR 1 है, 15 तारीख को हमारा ये SIP का इंस्टॉलमेंट है, 25 तारीख को हमारा लोन, होम लोन का EMI है। क्यों याद रखेंगे भाई। एक ऐसा सिस्टम बेस्ड ड्यू डेट कैलेंडर बना दो। मेरे पास क्या है कि ऐसा एक सिस्टम बेस्ड ड्यू डेट कैलेंडर बनाया हुआ है मेरे पूरे फैमिली का, जिसमें यहाँ पे मेरा अमेजोन प्राइम का मेंबरशिप कब खत्म हो रहा है, मेरी गाड़ी का PUC कब खत्म हो रहा है, कब इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, मेडिक्लेम, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। मैंने तो क्या कि यहाँ पे एक सीट है, डेटा नाम की शीट, उस शीट में केवल डेटा डाल दिया, वो ये अपने आप प्रायोरिटी शॉर्ट करके मेरे को दे देता है कि पहले आपको इसके ऊपर फोकस करना है, उसके बाद इसके ऊपर, इसके बाद उसके ऊपर, और लेटर ऑन लेटेस्ट जो भी है वो मेरे को पता चल जाएगा। और जैसे ही चेंज होगा मैं डेटा में जाके डेट चेंज कर लूंगा। और यहाँ पे मैं ये भी चेक कर सकता हूँ विद इन 10 डेज के 10 दिन में कितना आ रहा है, कौन कौन सा, विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज, विद इन 90 डेज, मोर देन 90 डेज, सो दैट आई कैन स्टे प्रिपेयर्ड। और मैं दिमाग के ऊपर कोई लोड लेके नहीं चलता हूँ कि ये तारीख कल ड्यू हो रहा है, परसों ड्यू हो रहा है। आई मेक अ सिस्टम बेस्ड ड्यू डेट कैलेंडर, गूगल शीट बेस्ड कैलेंडर अवेलेबल है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और डोंट नीड टू इन्वेस्ट माय माइंड। क्यों याद रखूं मैं, कल ये तारीख है, परसों ये तारीख है, क्या मेरे पास कोई रिटर्न में कुछ नहीं है क्या। करेक्ट, सो आई कैन वर्क ऑन दिस लेटर। करेक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेवलप योर रूटीन। जीवन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं कि मुकेश अंबानी का लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब वो कैसे जीते हैं। काफी बार हमने पढ़ा हुआ है कि मुकेश अंबानी सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे रेडी हो जाते हैं, 5:30 बजे वो योगा करते हैं, 6 बजे वो वॉक पे जाते हैं, 7 बजे वो ऑफिस मीटिंग का शेड्यूल देख लेते हैं, 8 बजे वो ब्रेकफास्ट करते हैं, 9 बजे वो ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। वी आर रीडिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ अदर पीपल, डू यू हैव आइडिया अबाउट अवर रूटीन। हमारा क्या रूटीन है मालूम है हमको, मतलब कि हमारा रूटीन क्या है। सर वो संडे है तो अलग होगा, हॉलीडे है तो अलग होगा। अरे नॉर्मली आपके पास कोई लिस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 45 मिनट्स का डेली वॉक, 1 घंटे यूएस टैक्सेशन सीखना है, डेली ड्यू डेट कैलेंडर चेक करो, कल का डायरी चेक कर लो, इन्वेंट्री बोर्ड देख लो, 1 घंटे का डिजिटल फास्ट चेक, गूगल कैलेंडर, रीडिंग बुक फॉर 30 मिनट्स, दिस इज माई रूटीन। ये डायनेमिक रूटीन है। क्यों डायनेमिक रूटीन है, डायनेमिक रूटीन इसीलिए है, 45 मिनट्स वॉक लिखा, कितने बजे जाना है वो नहीं लिखा है मैंने। क्यों, ठिकाना नहीं है मेरा। मेरा सुबह 7:30 बजे लेक्चर है ना, तो मेरे को सुबह 7:30 घर पे घर से निकल जाना पड़ेगा, गेट बाय गेटिंग रेडी। और रात को 9:30 बजे लेक्चर है, खत्म होता है तो मैं 10 बजे घर आऊंगा। सो 45 मिनट्स वॉक, 1 घंटा यूएस टैक्सेशन सीखना है, ड्यू डेट कैलेंडर चेक करो, ये मेरा रूटीन है।
इससे क्या होगा, ये हैबिट जितना आप मजबूत बनाएंगे उतना मजबूती से आप ज्यादा काम कर पाएंगे। ये डेली है। उसके बाद वीकली रूटीन, मैं पेरेंट्स से दूर रहता हूं तो वीक में एक बार बात करो, मंदिर जाओ, डेली टाइम होता नहीं है, मार्केटिंग एक्टिविटी करो, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट वीक करो, मंथली रूटीन नेक्स्ट महीने के लिए प्लान करो, हर महीने में एक बार मूवी देखो, वो डिपेंड करता है। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में बोले हर महीने के मूवी देखो, हाँ वो बात अलग है कि आजकल लोग अपने ओटीटी की वजह से डेली मूवी देखते हैं, रात के रात वेब सीरीज खत्म करते हैं, वो अलग बात है। बट एक नॉर्मल एग्जांपल है, करेक्ट, क्वार्टरली रूटीन एंड ईयरली एनुअली रूटीन, दैट मीन्स कि आपके पास आपका रूटीन होना चाहिए जीवन में। घूमने कब जाना है, बोले कभी भी जा सकते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं होता है। मेरा डिसाइडेड है कि मैं क्वार्टरली 2 दिन बाहर जाऊंगा, डिसाइडेड ही है 110%। वो ड्यू हो चुका है, नवंबर दिसंबर में फिर से 2 दिन जाऊंगा कहीं पर। क्यों? टू गेट रिफ्रेश। तो आपका रूटीन डिसाइड होना बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी। क्योंकि जिनके पास सुबह उठ के क्या करना है उसका ठिकाना नहीं होता ना, उसको जागने का मन भी नहीं होता है। मेजरली आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर ऑलवेज डूइंग कंप्लेंट्स अबाउट कि काम खत्म नहीं होता, स्टूडेंट ये बोलते हैं कि टाइम नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है कि भाई आपका रूटीन डेवलप करो। 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताया। नंबर 1 प्रायोरिटी मैनेजमेंट, नंबर 2 मैंने आपको बताया टाइम को ट्रैक करो, एक टाइम को मेजर करो कहाँ पे जाता है, नंबर 3 डेवलप योर रूटीन। और रूटीन में सारे टाइप के आपके रूटीन होने चाहिए, है ना। हेल्थ चेकअप भी एन्युअली करवा लेना है तो वो भी आपका रूटीन का पार्ट होना चाहिए कि एक बार करवा ही लेना है। 2024 चालू हो रहा है तो उसके पहले हम पूरा 2024 का प्लानिंग कर लेंगे। शेड्यूलिंग, किसी महान इंसान ने कहा है कि जो काम आप शेड्यूल करते हो वो काम होता है, होता है और होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एक स्टूडेंट को मिला, डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या सीखना चाहिए। उसने मेरे को पूछा, मैं बोला पावर बीआई सीखो भैया, पावर बीआई का टाइम है एंड बिग कॉर्पोरेट्स आर पिकिंग द पीपल हु आर गुड इन पावर बीआई। बोले थैंक यू सर, मैं सीखूंगा अभी। मैं बोला कब सीखोगे? बोले सर अभी तो सीए का एग्जाम है, वो खत्म होने के बाद गोवा घूमने जाना है। वेरी गुड। गोवा से आने के बाद तो फिर वो नया ईयर चालू हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आएगा ना, विल सी कि फिर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपका किसी भी चीज का शेड्यूल नहीं है तो वो काम डिले होता रहता है, प्रोक्रास्टिनेशन होता रहता है ना। लिखो कहीं पे कि दिसंबर की 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक 6 दिन में केवल ये चीज मैं करूंगा, 4 दिन में ये काम करूंगा। शेड्यूल करो चीज। लिखा था प्रायोरिटी मैनेजमेंट में शेड्यूलिंग का इंपॉर्टेंस है अपने जीवन में। एक डायरी मेंटेन करो। मुझे नहीं पता कि कितने लोग डेली डायरी रखते हैं, कितने लोगों के पास कोई एक्टिविटी का कोई भी रिपोर्ट है कि नहीं है, बट ये रिपोर्ट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। डायरी लिखो, शेड्यूलिंग करो। टू डू लिस्ट जो हमने डिस्कस किया, रूटीन वाला एक ऐसी चीज थी कि जिसमें रूटीन में आपको एक बैलेंस्ड रूटीन बनाना है, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, आपके स्पिरिचुअल थॉट्स को ध्यान में रखते हुए। और ये टू डू लिस्ट जो है वो आपका डेली का काम होगा। यू कैन मेंटेन वीकली टू डू लिस्ट, यू कैन मेक डेली टू डू लिस्ट, लेकिन टू डू लिस्ट होना जरूरी है। यदि आपके पास मालूम नहीं है कि जाना किधर है, कल सुबह तो उठोगे नहीं, नींद ही नहीं उड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। सो प्लीज एंश्योर दैट वी कैन हैव द टू डू लिस्ट एज वेल। और ये 3 चीजें, आपका शेड्यूलिंग और रूटीन यानी कि डेली रूटीन प्लस टू डू लिस्ट इज इक्वल टू योर डेली रोड मैप। मैं जब कल सुबह उठूं तो कल सुबह से पहले मेरे पास मेरा डेली रोड मैप, कल का रोड मैप पता होना चाहिए। आज मैं जब भी कभी मतलब मान लो कि मैं कल रात को सोया 2 बजे, तो 2 बजे भी मैं अपना कल का रोड मैप चेक करके ही सो गया था कि मेरा ये रूटीन है जिसमें ये मेरी इवेंट है, मतलब प्रोग्राम है, ये काम करना है, ये कैरी फॉरवर्ड, मतलब आज के दिन पता चला कि ये कल करना है, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। तो प्रायोरिटी क्या है? ये सारी चीजें हमारे लिए पहले से पता होना बहुत जरूरी है। कितने लोग रोड मैप बनाते हैं? बोले पता नहीं। कितने लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं? बोले वो भी नहीं पता है। तो इस चीज के लिए आज ये कॉन्सेप्ट आपको देख के जा रहा हूँ, डेली रोड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस डेली रोड मैप के लिए हम लोग 3 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे: शेड्यूलिंग, रूटिंग एंड टू डू लिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज
इन्वेंट्री बोर्ड और इन्वेंट्री लिस्ट। कोई भी नया बिजनेस की इंक्वायरी तो आई, लेकिन क्या उस इंक्वायरी को, उस बिजनेस को हम लोग लेटर ऑन भी रिस्पॉन्ड कर पाए? कभी वो तो भूल जाते हैं। आई मेट रिसेंटली वन प्रोफेशनल, बोले काम बहुत है लेकिन वो याद तभी आता है जब क्लाइंट याद दिलवाता है। तो ये तो गलत हो गया ना। यदि क्लाइंट याद दिलवाएगा नहीं तब तक अपन काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको भी याद नहीं है। एक बंदा आया, जीएसटी रजिस्टर करवाना है, मैं बोला ठीक है करवा दूंगा, डॉक्यूमेंट भेज दो। उसने डॉक्यूमेंट भेज दी है व्हाट्सएप पे। अब देखिए व्हाट्सएप पे तो क्या है कि डेली बम्बार्डिंग होता रहता है, तो उसका मैसेज चला गया नीचे। हफ्ते बाद उसने याद दिलवाया कि सर मेरा नंबर आ गया। मैं बोला अरे यार क्या करूं, अभी फंस गए यार, भूल गए थे। मैं बोलता हूँ कुछ क्वेरी आया, मैं देख रहा हूँ उसको, अब अप्लाई ही बाद में किया है, क्यों? मेरे को याद नहीं था। तो मेरे पास मेरे सामने ही ऑफिस में एक ऐसा इन्वेंट्री बोर्ड रहता है। कोई भी काम आया उसको चिपका देंगे। और देखिए अलग छोटे छोटे बकेट है कि अर्जेंट काम कौन सा है, उसका एक अलग A4 साइज पेपर है, उसके अंदर लगाया हुआ है। कौन सा अपॉर्चुनिटी है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कलर्स में यहाँ पे काम अवेलेबल है। सो एक इन्वेंट्री बोर्ड, इन्वेंट्री मतलब कि कितना काम पेंडिंग है। और दूसरा इन्वेंट्री लिस्ट, इन्वेंट्री लिस्ट जो है वो मेरा एक कंसिस्टेंट लिस्ट है जो मेरे साथ रहेगा। बोर्ड को लेके तो घूम नहीं सकते कि चलो बाहर जा रहे हैं, एंड आई एम एकदम इजीली मूवेबल पर्सन की कहीं से कहीं जाना पड़ता है। तो आई कीप अ इन्वेंट्री लिस्ट। कोई भी काम है याद है ना, लिख दूंगा वहां पे। डेली एक बार रिव्यू करूंगा इन्वेंट्री लिस्ट को। आप याद कीजिए, मैंने यहाँ पे डेली रूटीन में लिखा था कि चेक इन्वेंट्री बोर्ड एंड इन्वेंट्री लिस्ट 4th नंबर पे। ठीक है, क्यों लिखा था 5 नंबर पे? आई एम सॉरी, क्योंकि वो डेली एक बार चेक करना है ताकि याद है कि अच्छा इनका काम पेंडिंग है, इनका काम बाकी है। करेक्ट। सो इन्वेंट्री बोर्ड। तो कौन कौन से अभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, लेट मी रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट। वेरी सिंपल। नंबर 1 प्रायोरिटी मैनेजमेंट, नंबर 2 यहाँ पे टाइम ट्रैकिंग, नंबर 3 सिस्टम बेस्ड ड्यू डेट कैलेंडर। हम लोग दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालेंगे। नंबर नेक्स्ट इज योर डेली रूटीन। आपका अलग अलग टाइप का रूटीन डिफाइन करो, शेड्यूलिंग करो और टू डू लिस्ट बनाओ। इन तीनों के बेस के ऊपर बनता है आपका डेली रोड मैप। शेड्यूल करो, रूटीन करो, आपका डिफाइन करो एंड टू डू लिस्ट, और डेली का आपके पास आपका ये रोड मैप रेडी होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज इन्वेंट्री बोर्ड। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर नियरली ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ 2023। 2 महीने बाकी हैं अभी। आई नो इट्स अ बिग अमाउंट, बट फिर भी फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अभी टाइम ज्यादा नहीं है। हफ्ते 10 दिन में दीपावली है, दीपावली में 10-15 दिन निकल जाएंगे। करेक्ट। उसके बाद तो फिर ड्यू डेट्स ये वो करके नवंबर खत्म, दिसंबर तो वैसे भी जीएसटी में एनुअल रिटर्न में प्रेशर में खत्म। व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर? क्या आपके पास नेक्स्ट ईयर का प्लान है कोई? कि आपका पर्सनल गोल क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका हेल्थ गोल क्या है, क्या नए स्किल सीखने हैं आपको, आपका रूटीन क्या होना चाहिए? ओवरऑल रूटीन है, ओवरऑल रूटीन थोड़ा डायनेमिक हो चलेगा। वैकेशन पे कब जाना है, डेली 1 घंटा आपको वैकेशन लेना है, मतलब वो कुछ काम नहीं करना, ना मोबाइल यूज करना है ना कुछ और काम करना है। पर डे एक, पर वीक 1 दिन का रूटीन, मतलब कि हॉलीडे, फ्राइडे, 2 डेज पर मंथ, कौन से 2 दिन जाना है, 5 डेज पर क्वार्टर, 2 वीक्स पर ईयर, वो डिपेंड करता है। आप बहुत सेटल है तो 2 वीक जा सकते हैं। मैं अभी 2 वीक के लिए नहीं जा सकता हूँ, मुझे अभी 10 साल और काम करना पड़ेगा, 5-10 साल तब जाके मैं काम कर पाऊंगा। करेक्ट। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है, एनुअल प्लान है। जब आपके पास सर वो प्लान बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता, भाई वही होता है। वर्ल्ड की कोई भी बजटेड शीट लेके आओ जो एक्चुअल से मैच करती हो, कोई मैच नहीं करेगा। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बजट बनाएंगे ही नहीं, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक आपके पास ईयरली प्लान होना चाहिए, और ईयरली प्लान को हम तोड़ेंगे क्वार्टरली रोड मैप में। 2023 में पहले क्वार्टर में क्या है, दूसरे में क्या है, थर्ड में क्या है, एंड उस क्वार्टर को हम लोग तोड़ेंगे मंथ में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ। और उस मंथ को हम लोग तोड़ेंगे वीक में, और वीक को हम लोग डेली रोड मैप में कन्वर्ट करेंगे। सर ये प्लानिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं बदलेगी, ये कंफर्म है। और शुरुआत के 3 महीने बहुत दिक्कत होगा। लोग 10 दिन बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 3 महीने जो बंदा टिक गया उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। अब मेरे को मालूम ही नहीं है कि मेरे को साल के 50 लाख रुपए कमाने हैं, तो मैं भागूंगा ही नहीं उसके पीछे, है ना? 50 लाख कमाने हैं, मैंने टारगेट रखा कि जनवरी फरवरी मार्च थोड़ा स्लैक सीजन है, 10 लाख करता हूँ। लेकिन फिर जून, मई, अप्रैल, मई एंड जून काफी अच्छा सीजन है, 20 लाख कर देता हूँ। करेक्ट। तो इन दैट केस
यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही इस बात का इंपॉर्टेंस है कि हम लोग किस तरीके से अपने गोल्स को तोड़ सकते हैं हमारे एक मंथली गोल में, या फिर हमारे पास एनुअल रोड मैप है, इस एनुअल रोड मैप को हम लोग क्लोज करेंगे क्वार्टरली में, क्वार्टरली को हम लोग क्लोज करेंगे मंथली में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां तक हमको इस बात को, आई एम श्योर कि आपको क्लैरिटी है कि किस तरीके से हम लोगों ने ये 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट को हमने सीखने का ट्राई किया। प्लान होना ही चाहिए सर, प्लान करते हैं हम लोग लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, कोई चिंता नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्लान बनाना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। बैठे हो कभी? अभी जनवरी नवंबर महीना चालू हुआ, आज रात को बैठो, बैठ के पता लगाओ कि इस महीने क्या करना है, नेक्स्ट महीने क्या करना है। आपको ये सारा आइडिया लगाना है, क्या आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। एक बार बैठ के देखो, फिर पता चलेगा प्लान बनाने में 10,000 चैलेंज आते हैं। और प्लान एक बार आपने पेपर के ऊपर लिख लिया ना, तो भी आपका सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली काफी सारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेट मी गो थ्रू टू द सेम स्क्रीन अगेन। करेक्ट, सो वी हैव दिस मंथली गोल। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट? नेक्स्ट कैन बी, इन सारी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। गूगल कैलेंडर, चीजों को याद रखना है, गूगल कैलेंडर में लिख लो कि 22 तारीख को आपको कहीं जाना है, शेड्यूल है 2 घंटे का, लिख लो। गूगल शीट एंड गूगल फॉर्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप लोग काफी सारा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल फॉर्म बनाया हुआ, कोई भी काम याद आता है ना, कौन सी तारीख को करना है ना, उसका गूगल फॉर्म बनाया वो लिख लेता हूँ और बाद में जाके गूगल शीट चेक कर लेता हूँ। गूगल कीप काफी अच्छा एप्लीकेशन है। गूगल कीप की यदि हम लोग बात करें तो गूगल कीप इज सुपर्ब। आपके नोट्स लिखने हैं, फोटोग्राफ रखने हैं, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सब में ऑटो सिंक्रोनाइजेशन है। माइक्रोसॉफ्ट टू डू, वो भी आपका एक टू डू लिस्ट का ही एक पार्ट है। टू डू लिस्ट आपका गूगल कीप में भी बनता है। नोशन इज सुपर्ब, नोशन इज अ फैंटास्टिक। यदि आपके पास टीम है 5-10 लोगों का, यू वांट टू वर्क साइमल्टेनियसली, नोशन इज अ गुड। इफ यू आर वर्किंग अलोन बट वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, सुपर्ब चीजें हैं। असाना इज अ टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन। पोमोडोरो, पोमोडोरो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए मैं किसी भी बंदे को बोलूंगा, जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसको बोलूंगा कि तुम डेली 3 घंटे पढ़ाई करो, अभी तुमको सीपीए पास करना है, तो शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो पोमोडोरो में क्या होता है कि 25 मिनट का काम करो, 5 मिनट का रेस्ट लो, 25 मिनट का काम करो, 5 मिनट का रेस्ट करो। तो 25 मिनट का काम, 5 मिनट का रेस्ट, ये करके आप बहुत सारे काम कर सकते हो, मतलब 3-4 घंटा बैठ सकते हो। तो उसके लिए एप्लीकेशन है पोमोडोरो। करेक्ट, वो पोमोडोरो ऑफिशियली 25+5 बोलते हैं, लेकिन आप लोग कुछ भी कर सकते हैं कि 30 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स ब्रेक, 40 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स ब्रेक, दैट इज अप टू यू। करेक्ट, ये पोमोडोरो एप्लीकेशन, हैबिट ट्रैकर भी काफी सारी एप्लीकेशन है मार्केट में। आपका हैबिट मतलब वो डेली रूटीन वाला। मैं, किसी महान इंसान ने कहा है कि मैं उस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं कि जो बंदे के गोल बड़े हैं, लेकिन उस बंदे के ऊपर विश्वास करता हूं जिसका सिस्टम मजबूत है, डेली रूटीन मजबूत है। मैं डेली 10 किलोमीटर चलूंगा, महीने के 300 किलोमीटर हो गए, अब गोल मेरा 250 का है कि 300 का है, वो अचीव हो ही जाएगा। डेली का मेरा रूटीन मजबूत होना चाहिए। कंफर्टेबल, करेक्ट, दिस आर द एप्लीकेशंस। एंड आई वुड सजेस्ट, किताबें, यदि आपको लगता है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी देन यू शुड रीड दिस बुक्स। एटॉमिक हैबिट्स सुपर, अब देखिए यहाँ पे, फिर आपके पास यहाँ पे डू एपिक शिट इज आल्सो गुड बुक, डू इट टुडे, पावर ऑफ हैबिट, हाइपर फोकस, द 4 आवर वर्क वीक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बुक्स दिस आर। इनमें से कोई भी, आई हैव सजेस्टेड 12 बुक, बट रादर यू रीड एनी वन बुक, एनी टू बुक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू हैव, इट विल श्योरली इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। करेक्ट, लेकिन सर होता नहीं है। बुक लाके रख दिया, पढ़ नहीं पाते, प्लान बना दिया, एग्जीक्यूट नहीं होता है। रूटीन डेवलप कर दिया, लेकिन बाद में 2 दिन हुआ, 3 दिन नहीं हुआ। डायरी लिखने का भी ट्राई किया, 15 दिन हुआ, बाद में नहीं हुआ। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप दो में से एक इंसान को चुन सकते हो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या मेंटर। मतलब क्या, मैं और मेरा दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि मैं डेली 45 मिनट्स वॉक करूंगा। हम 4 दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम 45 मिनट्स वॉक करेंगे, चारों का ग्रुप बन चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप।
अब मैं सुबह वॉक करके आ गया, मैंने ग्रुप में डाल दिया 45 मिनट्स वॉक डन, सी माय स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब दूसरा बंदा, मैं तो 6 बजे जाके आ गया, दूसरा बंदा जो उठा 9 बजे, उसने सोचा यार ये तो क्या करे अभी, लेकिन फिर भी फटाफट रेडी हो गया, वो भी 45 मिनट्स वॉक करके आ गया, उसने भी डाल दिया मैसेज। अब 2 बंदे गए ही नहीं, ऑफिस चले गए, शाम को याद आया, किसी एक और बंदे ने मैसेज डाल दिया कि भाई मेरा भी 45 मिनट्स डन। अब चौथा बंदा जिसका बाकी है, वो खाना खाने के बाद भी आराम करके रात को 11 बजे भी वॉक करने जाएगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई बंदा ऐसा रखो कि जिसको आप बताओ, जिसको आप रिपोर्ट करो कि आपने काम किया है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर पीयर टू पीयर होता है, अपने लेवल के लोगों से आप जो भी सेम काम कर रहे हैं, आप उसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं। या फिर मेंटर रखो, मेंटर आपको जगाएगा। अब मेरा वेट कम है, लेकिन कोई बंदा है कि जिसको वेट कम करना है, वो कर नहीं पाता है, तो मैं उसको मार मार के बताऊंगा कि कर भाई काम, क्यों नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम मेंटरिंग सम यूपीएससी पीपल। अब मैं तो यूपीएससी कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, उनको पूछूंगा भाई क्या पढ़ाई किया, कौन सी बुक पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या रीजन है, आइए बैठते हैं, ये वो मेंटरिंग। आप एक ऐसा बंदा बता दो मुझे दुनिया में जिसका मेंटर था, जिसका गुरु था, और वो बंदा सफल नहीं हुआ, एक बंदा बता दो। यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। और एक ऐसा बंदा बता दो कि जो बहुत सफल इंसान है, लेकिन उसका कोई मेंटर नहीं है, बता दो। आप बोलते हो ना रोहित शर्मा, धोनी, तेंदुलकर, है ना, कोई भी फील्ड में है, आप बता दो। कोई भी फील्ड में कोई भी बंदा आगे आया है तो मेंटर के साथ ही आया है, और जिसके पास भी मेंटर है वो आगे आया ही आया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन में आपको ऐसे काफी सारे लोग मिलेंगे, काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे कि दुनिया की मत सुनो, लेकिन मैं बोलता हूँ सुनो भाई। क्योंकि जीवन में जब हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं ना, तब वही बंदे हैं जो हमको इस कीचड़ से निकालते हैं कि बाहर आओ भाई, दुनिया बहुत बड़ी है। आपके जीवन में मेंटर होना बहुत जरूरी है। मैं पूरे सेशन को समअप करता हूं विद इन 2 मिनट्स। आप देखिए, प्रायोरिटी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टाइम को ट्रैक करो, कहाँ पे टाइम जा रहा है। ड्यू डेट कैलेंडर बनाओ, सिस्टम बेस्ड ड्यू डेट कैलेंडर। ये दिमाग को आप प्रोसेसिंग यूनिट की तरह यूज करो, ना कि स्टोरेज यूनिट। डेवलप रूटीन, रूटीन डेवलप करो आपका। आपका डेली रोड मैप बनाओ, आपका पीरियडिकल टू डू लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। इन्वेंट्री बोर्ड और लिस्ट जो आपके आंखों के सामने आपको बताए क्या करना है। एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या मेंटर का आप चौकस निश्चित तौर पे आप लोग काफी अच्छे इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड फाइनली द स्टेज इज योर्स, यू कैन आस्क मी एनी क्वेरीज इफ यू हैव। Now I'm opening. You can unlock yourself. एक second, huh? 1 second. Anybody wants to? I'm allowing everybody to unmute themselves. You can unmute themselves. Ask a question. Hello. Everyone can unmute and ask the question. Anyone wants a question? Before going to a question, before coming a question, everybody is allowed to unmute themselves and you can ask the question. Let me summarize the talk which Bhavika told. Bhavin has talked. One thing is don't don't fail to plan. Plan, try to implement, because what we are doing that done is like this. I look at like this. First, people don't have a goal in their hand. गोल होने के बाद प्लानिंग नहीं होता है, प्लानिंग के बाद प्रोसीजर जो होता है सब गोल होता है, वो नहीं होता है। एंड दे आर फिक्स इन देयर लाइफ, लाइक इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, अनइम्पोर्टेंट, क्या बोलते नॉट हैं, इम्पोर्टेंट, नॉट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट. I had come to this stage of my life, okay, because I've done important things but not urgent. How I did it in my life, when I was like I was I prepared to, like, I want to, what was my aim of my life is to increase per hour rate. If you want a piece of life, you will need to increase the per hour rate. How you can increase the per hour rate is like you can increase your uh, passive income. But passive income is a concept. How you can do it? And does there is any
any formula to have a passive income, I think is a concept which is very difficult to implement. And most of the people have messed their investment plan and they made their mess of life. You see, those who have retired at the age of 60, 55, and they think that they would be growing because of their passive income. I'd seen very few people have grown because of the passive income. Only way to increase your income is to have the active income. And only way to increase your active income, important but not urgent. That is the thing you focus. Important है. जैसे आज भाविन भाई का लेक्चर सुना, ओके? जब आप लेक्चर सुनते हो तो उन्होंने क्या क्या टू डू लिस्ट बनाओ, इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट पे ध्यान दो, टू डू लिस्ट बनाओ, गूगल फॉर्म यूज करो, गूगल टेक्निक यूज करो, everything you plan but you never implement. He said don't implement, just plan. पहले प्लान करो तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आप इंप्लीमेंट करोगे, but 99% people doesn't plan. They don't have a plan. I did my plan, I wrote my plan. I want to increase my per hour rate. अब पर आवर रेट इंक्रीज करने के लिए मुझे 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 पैसा ज्यादा कमाना है तो मेरे को नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा. नॉलेज बनाने के बाद में मेरे पास क्लाइंट आएंगे कैसे, आएंगे तो रहेंगे कैसे? तो इसके लिए तुम्हारे दिमाग में, जहन में एक चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि तुमको खुद की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी. ब्रांडिंग कैसे करोगे? मीन्स ब्रांडिंग मीन्स यू ऑनर योर वर्ड. आपका बॉस ने बोला कि मुझे कुछ चाहिए, आपका पीयर ग्रुप ने किसी बोला कुछ चाहिए, किसी ने कुछ बोला चाहिए, तो देन यू वुड बी generous enough to give what he wants. Generous doesn't mean that you are allowing everybody to misuse you. You are allowing anybody to use you. Say, for example, I give you an example right now. This Bhavin is there. Okay. He has come and joined the program. He has allowed me to use his skill to be learnt by someone. So he has allowed somebody to use it. But somebody come and tell me, भाविन भाई वो टेली में मेरा ईवे बिल नहीं बनता है. तो भाविन भाई, he can't do it. He said, contact my assistant. Number one, he would guide you in creating e-way bill. He would guide you in creating e-invoice. But one or two times using Bhavin Bhai, okay. But now time and again you are asking, Bhavin Bhai, मेरा वो GST 2 है ना वो मैच नहीं होता है. And you are expert in this thing. और आप वो मेरे को टेली का वो क्या बोलते हैं, एक वो पैकेज सिंक्रोनाइज कर देते हो, इसको एड इन पैकेज करते हो. तो भाविन भी को एक बार पूछा तो बोले ठीक है कर देंगे, नो चार्ज. बट व्हेन यू कम टू अगेन, नो. सो these are like I am creating a people around me who are honoring me, who are valuing my services. And the more and more you do it, the more and more you started growing in your life. So what I said important is like you are servicing the others and you are valuing your services. And then whole aura would become. So तुम्हारे पास and most important thing in my life as I learn is like per hour rate बढ़ाओ. इसके लिए मैं पढ़ाई करता हूँ, बुक पढ़ता हूँ. One of the most important thing in my life I do is when I write something or I read something and I see that these are the word which is does not producing me which does not fit to the exact meaning of it. Then I go back, go to the dictionary and use it. And I use it day in, day out. First thing when I started my life, I did my Excel book twice or thrice. Excel की बड़ी बुक लो, उसको पूरा गिनो, पूरा एक्सेल में जाके गिनो एंड डू लाइक दिस लाइक ए स्कूल बॉय. जब स्कूल में नहीं होता था 1 to 10 लिखवाते थे, 1 2, अपने क्या बोलते घड़िया बोलते हैं ना दीपक भाई, घड़िया, टेबल्स. हमारे जमाने में घड़िया बोलते थे. तो इस तरह से तुम एक्सेल करो तो आप एक्सेल परफेक्ट करो, लैंग्वेज पावर बढ़ाओ, do some courses which are very important. Suppose I had been growing when I was like in 2000, my office was exactly near to my ICIC Bhavan, जो building है, Sardar Patel. I used to go
4 to 5 से in a day कोई भी लेक्चर होता था, मैं फीस भरता था, वो जो भी लेक्चर बोलता था उसकी नोट बनाता था, एंड देन आई यूज इट, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी साहब आए थे, फर्स्ट टाइम ही won the election, he came to our institute, इसने क्या लेक्चर दिया उसकी नोट बनाता था. Then he came again, come in this time. Every time he created a lecture, and I was reading that. So what I'm saying, don't roam. आप रोम नहीं करते, उसका नोट बनाओ. जैसे भाविन भी ने आज लेक्चर लिया, तो प्रिपेयर a note. What is important I can implement in my life. So the more and more you do it. So first मैंने पर ओवरहेड बनाने के लिए क्या क्या फॉर्मूला दिया, एक्सेल मास्टर बनो. दूसरा क्या बोला, लैंग्वेज मास्टर बनो. दूसरा क्या बोला, attend the maximum number of lectures. Now it may be relevant or irrelevant. When it comes to see, you create a supplier team. If you want to grow in life, your supply side should be very good. You don't need to find a customer. Find a supplier. Your staff is a supplier. Your computer is a supplier. When somebody comes with your work and you don't have a mechanism to deliver it, you will be failing. Someone would come. Many times marketing gimmick fails because market होता है, लोग purchase करने आते हैं, but they don't have a mechanism to deliver. Even if they have a mechanism, they don't have a brand. वो कुछ भी प्रोडक्ट दे देते हैं. So first thing is like आपकी ब्रांड होनी चाहिए. ब्रांड होने के बाद उसके ऊपर आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए. लोग बेचते हैं बट ब्रांड नहीं है. अब कभी ब्रांड भी बना दे तो गलत ब्रांड बना देते, क्योंकि इसके लिए तुम्हारी इंटीग्रिटी, तुम जो बोलो वो करो. Then law of your universe will come and serve you. So plan, implement, brand, integrity, commitment, and then take care of your body. Things will serve you. Deepak, બીજું બી કેવું છે? Anything else you want to say? So if Bhavin has said so many things, if I implement in a way, you can create a miracle in life. लोग वही किसी के ऑफिस में वो काम करते रहेंगे. They don't delegate. They do everything in a mechanical way. But if you want to grow, learn like Bhavin. He has done Excel के कितने क्लास लिए, Tally के कितने क्लास लिए, इनकम टैक्स के कितने क्लास लिए. Now he can say that I can do it. Not because of other way around that. With this, before concluding, I must say thank you very much. Let us applaud Bhavin for the same. Thank you very much for taking a class on this. I will put it on this YouTube. I will put it in a LinkedIn and many other ways. I'll serve that. With this next Friday at same time, workplace mindset. My main aim is to beat China by empowering people to perform powerfully. Only way to do is to learn. The next on 24th, because of Diwali, we skip one Friday. A GST by Sri Nirav Shah is a company secretary. He's filing so many returns. He has filed so many appeals. With the other one is I myself. I'd been doing income tax practice since more than 40. Like today, I'm 62. I started filing return at the age of 22. So I can say I'm reasonably good in filing return. And the third one is cybersecurity. I tell you, last few days back, I think on 31st, I went to some AGM on his retirement things. I find a person whose account is hacked and he lost around 82 lakhs because of that. How they hacked his account? They have hacked his email. They have hacked his mobile, and because of this mobile, they have changed in bank their mobile number and email ID. Because of that, they will be able to have the access to this bank, and they have withdrawn 82 lakh. And he was laxity, his phone was not working. So that his SIM card is broken or something. He after 2 days went to the
uh, to change his SIM card. As soon as they changed the SIM card, many messages came. Then he found that his 82 lakh has been withdrawn. He called police, cyber cafe, everything. But and our cyber police is so powerful. As soon as he informed Cybercrime 1903, all what cyber police has done, X account से Y account में पैसा गया, Y से Z में, Z to A, they have all linked with them. And when till that information is derived, few lakhs, he could recover around 40 lakhs. And it was 40 lakhs because of being withdrawn cash or spent by someone. So whenever something goes wrong with the cyber this thing, inform 1903. Our cyber team is very powerful. They can track all your accounts, X to Y account, Y to Z, Z to Z, anything. And they have a power to stop transferring the money. They can lock anything. Only thing, awareness, do it as fast as you can. Okay. So my last lecture is on cybersecurity. Anyone has an issue regarding cybercrime? We ISACA chapter always ready to guide. I'm running ISACA chapter since last 4 years. We have supported many people to do CISA, CISM, and all related courses. Our aim is to beat China. My game is to beat China because we have a very generous English, generous, good English speaking public, non-linear thinking. China is thinking linearly. Our people are very powerful to so non-linear. Only thing they need to start working hard once they go to stream, and that is what Nayanmurthy says that there should be a 70 hours work hours. I always say 70 work hours because if you want to work, 70 hours is nothing. You can work. Only thing, create a habit where I don't agree with Bhavin, but agreeing or not agreeing is not an issue. With this, I conclude and thank you very much. Those who want CPOs can contact me. Still, everything. Bye bye. See you once again. Thanks, Bhavin, once again. Thank you.